So today we will go and discuss about the animal breeding. What is the process? जैसे plant ने बोला कि the different varieties of plants are being contributed and two desirable characters can be put up in one generation. बराबर. टू डिजायरेबल कैरेक्टर जो दोनों अलग अलग प्लांट्स में हैं, वो दोनों एक ही प्लांट में हमें करना है तो हमें ब्रीडिंग उसका करना पड़ेगा. इससे ही एनिमल ब्रीडिंग में द certain characters are being taken up into consideration and these characters contribute to develop the new breed or the new variety. So let us go and talk about the animal breeding. Are you getting? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. No sir. Yes sir. Okay. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे. So animal husbandry में हमने देखा. Now we are talking about animal breeding. What is animal breeding? It is nothing but an important aspect in animal husbandry, and the main aim of animal breeding is to increase the and improving the desirable qualities of the product. एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम क्या है कि मान लो वो डेयरी एनिमल है, डेयरी मैनेजमेंट है, या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, पोल्ट्री बर्ड है, या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरियस सर्टन बी कीपिंग कल्चर, एपीकल्चर, फिश कल्चर, यानी this in this all the various certain breeds are being important and their quality and quantity is taken up into consideration. Okay, now breed, it is a group of animals which are related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. And this all belongs to the breed. Now in animal breeding, it is been done for the improved varieties or the desirable characters or to increase the productivity from that animals. Okay, so there are main two types of animal breeding which we can be differentiated. It is inbreeding and outbreeding. Inbreeding involves breeding of closely related individuals for food Okay, just a minute. You are getting the screen now? Hello? No sir. देखो अभी. Okay, Yes, sir. screen visible है? Yes sir. Okay. Now when we talk about the animal breeding, different types of the animals and उनके breed हम फार्म मैनेजमेंट में या एनिमल हस्बेंड्री में उसका यूज कर सकते हैं.
So talking about the goat farming, talking about the poultry, talking about the dairy management, different types of the various certain breeds are there. One by one, we will see the examples which are carried out from the textbook. Okay. So one of the most important aspects to achieve the quality and content. Now, when we talk about the breed can be said to be as two different varieties से क्रॉसिंग ओवर करके आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, इंडिविजुअल है, उसको हम ब्रीड बोलेंगे. जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग में बोला कि इन द प्लांट ब्रीडिंग द डिफरेंट qualities and quantities are being seen, and these different qualities and quantities can be hybridized into one. Okay. Now look here. For example, when we talk about these two breed, Jersey and this is one of the Leghorn, poultry का ये bird है. Jersey is one of the breed which is exotic. Exotic का meaning क्या है? कोई बताएगा? What has been my exotic? Yes, anybody? I'm using the term exotic. Yes, can you hear me? Cadets? Yes, sir. Yes. Exotic का meaning क्या है? From far away. That's foreign. सीधा सीधा हम उसको बोलेंगे कि it's a foreign. Okay. So when we talk about this exotic breed, जर्सी, न्यू जर्सी, हमें पता है न्यू जर्सी कहाँ पे है. वहाँ की एक कर्व वैरायटी, वहाँ की एक वैरायटी इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया. तो ये जो ब्रीड बनी है उसको हम जर्सी बोलेंगे. और दूसरा एक पोल्ट्री का बर्ड देखिए, चिकन का, दैट इज लेगहॉर्न. These are two exotic breeds. Now we know that animal breeding can be differentiated into two aspects, that is inbreeding and outbreeding. Inbreeding जैसे हमने बोला कि उसी पर्टिकुलर फैमिली से कंटिन्यूस ब्रीडिंग लिया जाएगा, ब्रीड किया जाएगा, उसको इनब्रीडिंग बोलेंगे. एंड आउटब्रीडिंग मीन्स फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली. ओके, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. Animal breeding is nothing but one of the aspect in animal husbandry to increase the production of food, maybe from the poultry birds, or the production of the milk maybe from the dairy animals. Okay, so inbreeding, it is the कॉमन एंसेस्टर्स से जो ब्रीड किया गया है उसको इनब्रीडिंग बोला जाएगा. अब दोनों एक ही फैमिली से या एक ही रिलेटेड या सेम ही दिख रहे हैं, तो ऐसे ब्रीडिंग को कॉमन एंसेस्टर, जिसका जनरेशन टू जनरेशन एंसेस्टर कॉमन है. अभी इतना ये एंसेस्टर, व्हाट इज द टर्म एंसेस्टर, दैट ऑल यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंसेस्टर, यानी एक ही फैमिली से उसका क्रॉसिंग ओवर किया जा रहा है, उस क्रॉसिंग ओवर को इन ब्रीडिंग कहलाया जाएगा. गॉट इट? समझ में आई बात? हेलो. Yes, sir. हाँ, इन ब्रीडिंग यानी उसी कॉमन एंसेस्टर से जो ब्रीड किया गया है उसको हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग. आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों जो दिख रहे हैं, द ऑक्स मेल एज वेल एज फीमेल काउ, वो एक ही सिमिलैरिटीज पाती है, बराबर. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट आउटब्रीडिंग, जिनके एंसेस्टर डिफरेंट है,
उनका क्रॉसिंग ओवर कराना उसको आउटब्रीडिंग कहा गया है। यहाँ पे अगर हम ये बुल देखते हैं तो ये किल्लारी वैरायटी का है, और यहाँ पे अगर ये हम काऊ देख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे मेवाड़, या व्हाट वी से, एमपी में एक उसका नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम। बड़े सिंह वाली जो गाय होती है, तो इन दोनों के एंसिस्टर डिफरेंट है, उनमें क्रॉस अप किया गया, उनमें ब्रीडिंग किया गया, तो उस तकनीक को आउट ब्रीडिंग कहा जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल ब्रीडिंग. Animal breeding is been classified into two types, that is inbreeding and outbreeding. Inbreeding is nothing but the crossing of, we can say, the population or the increasing of the herd from that same ancestor. Outbreeding is nothing but from the different ancestor. So why it is necessary in animal breeding? To get the new variety of various certain animals. Next. Okay. Now when we talk about these two species, देखो यहाँ पे ये रेड शिंदी is a Indian bull and Jersey is a foreign exotic cow. इन दोनों के डिफरेंट एंसेस्टर है। अब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जो ब्रीड हमें मिलेगा, अभी इंडियन रेड शिंदी दैट इज डिसीज, यानी डिसीज फ्री है ये, और ये जो जर्सी काऊ की अगर हम बात करते हैं तो ये मिल्क के क्वांटिटी में, यानी मिल्क क्वांटिटी सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली गाय हम बोलेंगे। तो अगर इनका क्रॉसिंग ओवर किया जाए तो वी विल गेट द important breed. So that is nothing but the outbreeding technique from the different animals. Okay? So let us learn about more about inbreeding. Now inbreeding में भी अगर हमने क्रॉस ओवर करना है तो हमने सुपीरियर बुल एंड सुपीरियर काउ को कंसीडर करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो हर्ड है या डेयरी मैनेजमेंट में जो भी हम काउज को या जितने एनिमल्स को हम रियर करेंगे वो अच्छे क्वालिटी के हो। तो सुपीरियर बुल को क्रॉस अप किया जाएगा सुपीरियर काउ में इन ब्रीडिंग टू गेट द न्यू एस्ट्रिंग विच इज दिस इज 3 एंड 4 to 6 जनरेशन तक ये क्रॉसिंग ओवर किया जाएगा टू डेवलप द न्यू वैरायटी। अभी सुपीरियर काऊ इसलिए हम बोलेंगे कि वो ज्यादा दूध देने वाली है, ज्यादा मिल्क देने वाली है क्वालिटी में, इसलिए वो सुपीरियर हो गए हैं। सुपीरियर बुल को हम इसलिए बोलेंगे कि वो डिसीज फ्री है एक्सेप्ट, तो आने वाली नस्ल या आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अच्छे से डेवलप। नेक्स्ट, मकसद इसके पीछे है टू डेवलप द सुपीरियर वैरायटीज। अब इन दोनों में मीटिंग करवाया जाए, इन द दैट विल कैरी आउट द न्यू फॉर्मेशन। लेकिन इन ब्रीडिंग का एक ड्रॉबैक हम बोलेंगे, या वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज देयर कि इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस ये टर्म हमें जेनेटिक्स में आएगा कि सेम जनरेशन टू जनरेशन अगर वो जीन्स पास आउट होते हैं तो 4 to 5 जनरेशन तक वो ठीक है, अच्छी क्वालिटी, लेकिन उसके बाद द प्योर लाइन, दैट डिजायर कैरेक्टर विल लॉस्ट, उसको बोला जाएगा होमोजाइगोसिटी। आई रिपीट, होमोजाइगोसिटी यानी कंटिन्यूअस वही कैरेक्टर, वही ट्रेट या वही जीन कैरी फॉरवर्ड किया गया है 4 to 5 जनरेशन तक, तो दैट जीन विल बिकम साइलेंट। जेनेटिकल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे जीन साइलेंट। जो सुपीरियर क्वालिटी हम चाहते थे वो 4-5 जनरेशन तक आई, उसके बाद वो साइलेंट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे होमोजाइगोसिटी। वेरी सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट, कैरेक्टर जो हमें लगना है वो एंड the desired character will be lost। ये एक्सप्लेनेशन जेनेटिक्स में जाएंगे तो तब देखेंगे कि ग्रेगर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे उसमें हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि यहाँ पे देखो टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटी फर्स्ट चैप्टर हम इन द जेनेटिक्स विल गो एंड डिस्कस अबाउट ऑल द वेरियस सर्टेन लॉज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। यहाँ पे हम
होमोजाइगोसिटी समझ रहे हैं। अब देखो, टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉसिंग ओवर करने के बाद F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सभी टॉल आ गए, नो डाउट। एंड तो इनब्रीडिंग में क्या होगा, डिसएडवांटेज में, कि नो डाउट एक डिजायरेबल कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होगा और वही डिजायरेबल कैरेक्टर एक जनरेशन यानी जनरेशन टू जनरेशन में इलिमिनेट हो जाएगा। that will eliminate the undesirable characters and that will cause the homozygosity. Next, यानी रेसेसिव जीन का एक्सप्रेशन अगर वो हो गया तो इट विल बी हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर हर्ड 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 बोल रहा हूँ मैं, हर्ड, HEARD, हर्ड, यानी जो कड़प या जो भी हम ब्रीडिंग टेक्निक से जो डेवलप कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर जो कैरेक्टर हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन ब्रीडिंग में चलाते आ रहे हैं तो 5 to 6 जनरेशन में वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लॉस हो जाएगा और डिसीज एनिमल्स का ब्रीड या ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा एंड दैट विल बी कैरिड आउट, दैट विल बी सेड टू बी एज द होमोजाइगोसिटी। नेक्स्ट, तो इनब्रीडिंग का ये इम्पोर्टेंट यानी उसको हम बोलेंगे डिसएडवांटेज है, या फिर उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहलाया जाएगा। या भी देखो, ये दोनों इनके जनरेशन टू जनरेशन अगर 4 to 5 जनरेशन तक अगर ये कंटिन्यूस चलते रहा इनब्रीडिंग, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि भाई जो आने वाली हर्ड या नस्ल है वो यानी सक्सेसफुल नहीं रहेगी और इट विल बी prone टू वेरियस सर्टेन डिसीजेस। सो इनब्रीडिंग का यहाँ पे ड्रॉबैक है, इसलिए इनब्रीडिंग से हम कन्वर्ट होते हैं आउटब्रीडिंग के लिए। सो दैट टर्म इज आल्सो मेरी आवाज आ रही है आपके अब तक? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yes, sir. ओके, तो देयर वाज सम नेटवर्क सर कंजेशन। बोलिए बोलिए। यस, विल कम टू द पॉइंट। जस्ट अ मिनट। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हमें आ रहा है। हेलो? Yes, sir. दिखाई दे रही। दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट आउटब्रीडिंग। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आउटब्रीडिंग, उसकी हम बात करेंगे।
इन ब्रीडिंग समझ में आया? हेलो। यस सर। एनिमल ब्रीडिंग में हम इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग देख रहे हैं। इन ब्रीडिंग दैट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस जनरेशन टू जनरेशन, द सेम फैमिली से सेम जनरेशन से क्रॉस सेम जनरेशन से मेटिंग करवाया जाएगा एनिमल्स में, उसको हम बोलेंगे इनब्रीडिंग। एंड आउटब्रीडिंग यानी दो अलग जनरेशन से मेटिंग करवाया जाएगा, उसको हम आउटब्रीडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि भाई द काउ फ्रॉम जर्सी एंड द इंडियन बुल रेड सिंधी, इनका अगर क्रॉस, अभी ये क्रॉस हो गया बराबर, तो इनका अगर क्रॉस किया जाता है तो उस तकनीक को आउटब्रीडिंग कहलाया जाएगा। व्हाट इज आउटब्रीडिंग? दैट लेट अस गो in outbreeding. Now when we talk about this, can be carried out into three types or three ways, sorry: outcrossing, crossbreeding and interspecific hybridization से outbreeding करवाया जाएगा। One by one let us clear the concept that outcrossing क्या है, crossbreeding क्या है and interspecific hybridization क्या है। सबसे पहले outbreeding technique समझ लो। What is outbreeding? Outbreeding is nothing but दो अलग जनरेशन, दो अलग फैमिली से जो मीटिंग करवाया जाएगा एनिमल्स का, दैट विल लीड इनटू द आउटब्रीडिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल ब्रीडिंग इन द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री के अंडर द एनिमल हस्बेंड्री वी आर टॉकिंग एनिमल ब्रीडिंग। ओके, सो आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग and interspecific hybridization, these are the three aspects of outbreeding. One by one we will go. Now outcrossing is nothing but one of the mating between the animals of the same breed, लेकिन नो कॉमन एंसिस्टर्स, यानी उनका जो व्हाट वी कैन से दैट फैमिली हिस्ट्री है वो ना देखते हुए सेम एनिमल रहेंगे, लेकिन दोनों की हिस्ट्री या दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा। उसको हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। देखो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बुल, वो सेम एनिमल है एज कंपेयर टू दैट काउ, लेकिन डिफरेंट एंसिस्टर से, ये अलग एंसिस्टर या अलग फैमिली से है, ये अलग फैमिली से है, लेकिन सेम ही है। दैट इज सेड टू बी एज आउट क्रॉसिंग। समझ में आया? See, these are the terms which are very important. इसका concept समझना बहुत important है। The 1 mark question as well as when we talk about the competitive examinations, MHCT, NEET में ऐसे यानी इसके ऊपर आपका confusion ज़्यादा हो सकता है। हम आउटब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। आउटब्रीडिंग में हम सबसे पहले देयर आर 3 एस्पेक्ट्स और 3 फॉर्म टाइप्स इन द आउटब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग है, ओके, देन द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। तो आउट क्रॉसिंग में हम क्या देख रहे हैं कि सेम है, दो सेम एनिमल बट फ्रॉम द डिफरेंट एंसिस्टर, डिफरेंट फैमिली, कॉमन एंसिस्टर से नहीं है, तो दैट इज सेड टू बी एज आउट क्रॉसिंग एंड दिस ब्रीडिंग इज सेड टू बी एज आउट। Animals are not related for 4 to 6 generation are been cross। ये क्यों की जाती है कि unrelated animal of the same breed with the superior quality will restore the fertility and productivity। यानी होमोजाइगोसिटी जो हम बोल रहे हैं, होमोजाइगोसिटी यहाँ पे अवॉइड कर दी जा सकती है। आउट क्रॉसिंग में ये बुल जो लिया है ये अलग फैमिली से है, ये गाय या काऊ जो ली है वो अलग फैमिली से है फ्रॉम द अनदर एंसेस्टर, बट बोथ आर सेम। और इसको हम बोलेंगे कि एनिमल्स विच आर नॉट रिलेटेड फॉर 4 to 6 जनरेशन, इनका क्रॉसिंग ओवर करने से what will get the unrelated animal of the same breed with the superior quality, the fertility and productivity can be restored. Next, crossbreeding, the second part in outbreeding। अब क्रॉस है, इसको हम सीधा क्रॉस बोल रहे हैं ना भाई। रेड सिंधी बुल फ्रॉम इंडिया, जर्सी काउ फ्रॉम फॉरेन, इन दोनों का मीटिंग कराओ, दैट इज सेड टू बी एज क्रॉस ब्रीडिंग।
अब इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स यहाँ पे हम बोलेंगे हाइब्रिड यानी दो अलग वैरायटीज है। अब ये दोनों में से हम जो बात करते हैं, ये एक इंडियन वैरायटी है रेड सिंधी बुल। इट इज रेजिस्टेंस टू द वेरियस सर्टन डिसीजेस एंड लैक्टेशन या ज्यादा मिल्क देने के लिए जर्सी काऊ फेमस है। तो क्यों ना इसका क्रॉसिंग ओवर किया जाए और हाइब्रिड हम देखते हैं। या आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर योर फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड एंड रिसाइडिंग इन द विलेजेस, आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार की गाय आपको आप देखते होंगे, तो उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके फोटोग्राफ्स लेके उसका हिस्ट्री जान सकते हैं कि ये कहाँ से लाई थी, कि कहाँ से आई है, वगैरह वगैरह। देखो बहुत सारे फार्मर्स को पता रहता है कि उस वैरायटी का नाम क्या है एक्सेट्रा। हो तो दैट विल अभी घर पे है स्टेइंग होम, तो यू हैव टू कैरी आउट, सो इतना थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप वही के वही निकाल सकते हो। ओके, एज इट इज गिवन इन आवर बुक। नेक्स्ट, दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर को हम एक कर रहे हैं, तो ये जो वैरायटी बन रही है, देखो इस वैरायटी का नाम है जरसिंद। जरसिंद यानी सिंध, रेड सिंधी बुल with the mating with the Jersey cow, we get the Jersind. Yani disease resistant as well as more lactation, that will be one of the beneficial for our the crossbreeding mechanism in animal husbandry. अब ये जर्सिन को अगर हमने कंटिन्यूअसली उसको इंक्रीज किया तो वो एक पॉपुलेशन करा सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे बुक में जो दिया है, दैट इज वन ऑफ द that is for the goat farming, that is Bikaneri eve and Merino rams। ये मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों का मीटिंग करा के जो हम गोट फार्म में यूटिलाइज करते हैं, तो डिफरेंट वैरायटीज हम देखते हैं। ओके, शिप, these are ships, हिसारडेल। अभी हिसारडेल इज द वैरायटी विच इज ब्रॉट अप फ्रॉम मैरिनो रैम्स एंड बिकानेरी ईव्स। और हिसारडेल इसलिए इसका नाम दिया है बिकॉज द गोट फार्मिंग या व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग का जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज लोकेटेड एट हिसार, हिसार पंजाब। ओके, सो द वैरायटी हिसारडेल। ऐसे हमने प्लांट ब्रीडिंग में देखा पूसा सावनी, पूसा भेंडी। तो पूसा न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ब्रीडिंग सेंटर है। वैसे ही एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर पंजाब हिसार में है, इसलिए हिसारडेल। गॉट इट। नेक्स्ट, इंटरस्पेसिफिक। अभी एक एग्जांपल है इसका इंटरस्पेसिफिक का, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का, कि मेल डोंकी विद द फीमेल हॉर्स। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, किसी को पता है? What will be the breed which will be occur from this interspecific hybridization? Yes, anybody? Yes, यानी इन दोनों का क्रॉस ओवर करके जो ब्रीड हमें आता है, वो ब्रीड मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस में सामान का आवक जावक कराने के लिए यूज किया जाता है इन द माउंटेनस रीजन, जिसको हम बोलते हैं खच्चर। दैट इज म्यूल। म्यूल। दैट इज वन, हाँ, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्पेसिफिक। अभी इंटरस्पेसिफिक यानी दो अलग स्पेसीज है ना, एक डोंकी का स्पेसीज है, एक हॉर्स का स्पेसीज। इनमें हाइब्रिडाइजेशन करा दैट इज to obtain that hybrid for the various certain purpose for the transportation, etc., etc. So that is again the third type of outbreeding, that is interspecific hybridization. Mating between the male donkey and the female horse, that we get mule, and this mule is utilized for the transportation most in the hilly regions। बहुत सारे जगह पे इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एंड दिस इज इनफर्टाइल, म्यूल इज इनफर्टाइल, लेकिन उनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही है। तो दिस आर ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू एनिमल ब्रीडिंग। अब इसको भी इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, ये तो भाई हो गया नेचुरल कंडीशन में।
तो यही कंडीशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इन विट्रो कंडीशन से भी जायज या किया जा सकता है. व्हाट इज दैट वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल स्टॉप हियर. Artificial insemination is nothing but one of the technique where the semen is been taken up from that superior male. अब मान लो कि ये मेल अवेलेबल करने के लिए या इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जहाँ पे मीटिंग कराने के लिए उसको लेके जाना है. दैट वाज इन दोज डेज दैट वाज सीवियर प्रॉब्लम. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, देन this particular semen is been incorporated from that male. It is been collected from that superior male, and then it is been carried out in that female for the mating purposes. When we talk about the LHC center, the veterinary doctors के पास जो बहुत बड़ा can होता है, most of the time they carry out this, and they carry out the various certain mating program in the villages itself. So that is said to be as artificial insemination. So this artificial method can be carried out for the various certain purposes, and this can be semen which is been frozen. Look out. अगर नेचुरल ब्रीडिंग हम नहीं करा सकते, मान लो कि भाई ये एग्जॉटिक ब्रीड है जर्सी से, जर्सी और इंडिया, तो भाई ये पॉसिबल तो नहीं है कि भाई इसको यहाँ से उठाओ और इंडिया में लाओ, या इंडिया से इसको उठाओ वहाँ पे लेके जाओ. So to overcome this all natural breeding problems, artificial insemination is one of the technique which has been utilized to increase the herd. Okay. Again, it can be carried out by mating with the animals which are geographically separated. मान लो कि भाई चाइना, इंडोनेशिया या पाकिस्तान या दूसरे अलग अलग कंट्रीज से ब्रीड हमें लेने हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये प्रोग्राम हल कर सकते हैं. दिस इज ऑल नथिंग बट अबाउट ऑल द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. नाही काय नाही चालेल ना मला का म्हणले सांगा मैंने काटा. अनदर एस्पेक्ट इन एनिमल ब्रीडिंग इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो हो गया भाई, नेचुरली अगर नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली उसको किया जाएगा. एंड अनदर वन टेक्निक इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. मोस्ट ऑफ द दिस टेक्नोलॉजी इज बीन कैरिड आउट इन फॉरेन कंट्रीज एज कंपेयर इन इंडिया. अब मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो टेक्निक क्या है वो हम देखेंगे. Now, MOET is nothing but one of the technique where the gonadotropin hormones like follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone are injected in the cow for to develop the multiple ovum, and these ovum are being sorted out and that have been prepared in vitro culture. And the number of the herd, यानी herd को increase करने के लिए एक ही साल में एक गाय से हम 4 बछड़े ले सकते हैं artificially. That technique is said to be as multiple ovulation embryo transfer technology, MOET. एक साथ 3-4 ओवम, 6-7 अगर एग्स उस काऊ के इसमें से निकाले जाते हैं, उसको हम बोलेंगे सुपर ओवुलेशन. और फिर इन सभी 6 to 8 एग्स को फर्टिलाइज किया जाएगा विद द इंसेमिनेशन प्रोग्राम. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगर इन सारे ओव्यूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद that will be incorporated into the cows. (32 cells तक उसका फर्टिलाइजेशन के बाद then can be transferred to the various. अब ये जेनेटिकल मदर है, लेकिन ये 4 अलग सरोगेट मदर्स में अगर इम्प्लांट कर दिया जाए तो एक साथ हमें आइडेंटिकल काल्स मिलेंगे, बछड़े मिलेंगे, और एक ही साल, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड सरोगेसी कैन बी कैरिड आउट. तो इस तरीके से दिस टेक्निक is been developed or it has been helped to carry out the herd population, HERD. कम समय में बड़ा अगर हमें हर्ड बनाना है, हर्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं.
अब ये टेक्निक काउज, सांड। बफेलोज एंड शिप्स में यूज की जाती है, दैट इज MOET, मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. दोन असतात ना ते ना सॅन्ड्रा खाली गोळी मारून म्हणून ते पिक्चर लावलं आता लिहिलेलं आहे व्हॉट इज वाचलं नाही का इंग्लिश कोणालाच. सेमन इज your सुपरियर मेन. from the city or This is all today about animal breeding. नाही रे तू याचे लिहितोय का त्याचे काय लिहितोय कसलं? हे जे लिहितोय हे घे. मी तर ते करते हे कर ना काय करू देतो? ते ऐक ना व्यवस्थित हे का त्याच्या तो मागे बोलत आहे Issues तुम्ही are ऐकत there. आहे. तुकाराम सर. तुकाराम सर. अथर्व. अरे वो क्या बंद होना है क्लासेस. काय झालं? क्लासेस क्या बंद होना है. आवर रे. आवरा रे. निघाणार आवरा, रे. आवरा. अरे ओ ऋतिक निघ ना निघणार रे. माइक तो म्यूट कर जा रे बोलायच्या वेळेस. आवरा. आवरा आवरा आवर रे गौरव.